Hi guys, this is Rohit from Salesforce Jungle. So first of all, I want to wish you a happy new year. And it's a second of Jan when I'm recording this video. And this year was a great year for everybody, for the students, and for everyone who is in our ecosystem. So I want to this particular video might help you and encourage you to move forward with your careers, whatever you are doing, and just upgrade towards 2020. Every year comes up with an opportunity. So the what I am thinking is, if you are good in what you're doing, so companies will come to you to catch you and get their work done. So that's what my thinking towards the work, and that's what my thinking towards the learning prospect. So in 2022, so we have achieved multiple things. We have cracked multiple milestones. Talking about placements, so we have almost done more than 330, like 30-40 students got 330 and 40 offer letters we received in 2022, and more than 250 students got placed. Some students got multiple offer letters, some students got 4 offer letters. There are super students who got 7 offer letters too. There is one student got 8 offer letters, then that is fresher. So that's a great achievement, not only for the student, for the organizations, and whosoever got the offer letter. ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ. So I'm repeating my words, in this particular video. Whosoever gets the offer letter after getting taught is not our offer letter. I take zero credit. I don't want to take the credit because I'm not giving guarantees. That's for sure. So till now I haven't given any guarantee to anyone. Many people trust me, many students trust me. I was the online guy, started this particular education thing. The main thing that I understood is why and how I can teach better. How I can be the different from other teachers. What all languages I need to use. What all sense of examples I need to use. Because I was dealing with the real world, real challenges. I myself from the electronics and communication and from very basic city, very basic college, and started my journey all the way from a lot of struggles. And I learned how things can be changed and how can be changed. So I don't want to take credit of anyone who achieved that. People might, like student might say, yeah, Rohit Puri, Salesforce Jungle. But I don't want to take credit. I'm telling this from my heart. Whosoever get the offer letter, वो students की अपनी मेहनत है. That's their struggle. If student get one offer letter, it takes 25 to 30 interviews to crack one offer letter. So if somebody scroll somebody's post, ये तो he got offer letter after this much experience लगा के ये लगा के वो करके fresher के इतने offer letter कैसे आ सकते हैं, fresher ऐसे कैसे place हो सकता है, ये हो सकता है. भाई उस fresher ने कितनी इंटरव्यूज दिए ये भी सोचो ना. 70, 80, 90, 100. आप में इतना पेशेंस है, कैपेबिलिटी है, सबसे पहले तो दम है. कहना बहुत आसान है. जब एक इंटरव्यू क्रैक ना हो ना, पहली इंटरव्यू क्रैक ना हो, दूसरी ना हो, तीसरी ना हो, चौथी ना हो, दूसरे तक ही इंसान खड़ा रहता है कि यार पता नहीं क्यों नहीं हो रही. और पता करने की हम कोशिश नहीं करते क्यों नहीं हो रही. हम तो ये देखते हैं उसकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही. हमारे मन में ये होता है. अगर हमारे मन में ये हो कि हमारी अगर नहीं हुई है प्लेसमेंट, तो उसके पीछे रीजन क्या है. क्या रीजन थे कि मैं उसमें परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया. What is मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ. What's that checkbox that I haven't filled. क्या ऐसा कभी सोचा है. आप सोचते हो सीधा 10 लाख वाली बात, आप कभी उसको तोड़ते नहीं हो 10 लाख को. कि पहले मैं इतना कैपेबल हो जाऊं कि मैं 4 लाख का पैकेज ले, पहले फिर उसके बाद इतना कैपेबल हो कि मैं 6.5 का ले सकूं. मैं कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि 20 लाख का पैकेज ले जाके. नो, आई नेवर. आई टेल देम कि पहले तो फ्रेशर वाली क्रैक कर, पहले तो स्टार्टअप वाला क्रैक कर. वो क्रैक कर पाया तो जो बिग 4 है उसकी अगर कुछ हमें कुछ लगता है कि वी आर लैकिंग, देन वी कैन डू दैट एज वेल. तो माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और इतनी पेशेंस चाहिए. कई लोगों का ऑफर लेटर एकदम से 1 महीने में, 1.5 महीने में नहीं आता. तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो बच्चा छोड़ दे. 4 महीने पहले वो पढ़ता है हमारे पास, फिर 1.5-2 महीने नहीं आता, 6 महीने हो जाते हैं. तो पेशेंस लेवल चेक करो उस स्टूडेंट की, उस बंदे की जिसके पास ये चीज आई है. तो अगर उस कंसिडरेशन से पढ़ोगे कि लेना ही लेना है, एटीट्यूड ही अगर ऐसा होगा, फिर तो कोई रोक नहीं सकता. फिर मैं क्या, आप किसी भी हर टीचर बढ़िया इंडस्ट्री के अंदर.
मैं कुछ खास नहीं हूं। सो द थिंग इज कि अगर उस कैपेबिलिटी से आप पढ़ोगे, अगर उस कैपेबिलिटी से आप काम करोगे, अगर उस स्किल सेट को अचीव करना चाहते हो तो ढीठ बन जाओ। जैसे हम छोटे होते किसी चीज को देखते थे, यार पापा ये लेना ही लेना है, आई वांट दिस एट एनी कॉस्ट, तो वैसे ही हम ये नहीं कह सकते कि यार मुझे वो चीज लेनी ही लेनी है। अगर उस माइंडसेट से बढ़ोगे, उस माइंडसेट से काम करोगे, तभी ये चीजें अचीव होगी। अगर मैं अपनी टीम को बहुत पुश करता हूँ, पुल करता हूँ, मैं ऐसे ही हूं कि हमें ये टारगेट पूरे करने ही करना है कि पूरे बैच को प्लेस करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं कंपनीज को सीधा कंपनी लाके उस स्टूडेंट के टेबल पे रख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। हम स्टूडेंट का अगर प्लेसमेंट सिस्टम भी हमारा ऐसा है कि हम सिर्फ यहाँ तक पुश कर सकते हैं कि प्लेस इंटरव्यू किसी भी कंपनी की हो, क्रैक कैसे करनी है। शेड्यूल तू करवाएगा, ढूंढेगा तू, इंटरव्यू तू देगा, फिर टैग मैं कैसे ले सकता हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इंटरनेट के ऊपर। मैं टैग ले नहीं सकता, वो मेरा टैग है नहीं। तो स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए हैं, तो ये आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू योर पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू योर करेज, आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू योर पेशेंस, जिन ये चीजों को मिलके ही एक चीज एक पर्टिकुलर स्टेज पार की जा सकती है। सो थैंक यू ऑफर लेटर देने के लिए, लेने के लिए नहीं। तो यहाँ पे आपने दिया है मुझे, कभी आपने लिया नहीं है मुझसे कुछ। तो मैं तो सिर्फ एक छोटी सी चीज, हम तो, मैं अपने आप को कंसिडर करता हूं कि हम लोग तो व्यापारी हैं, लेकिन तुम लोग हो जो, तुम ही हो जो तुम कुछ कर सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये मेरा ओपिनियन हमेशा ये रहा है, मेरा सोच मेरी ऐसी रही है कि एक तो तुम ढीठ बन जाओ। अगर जो भी स्टूडेंट, देखो जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास ही आओ, आप कहीं से भी पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी करो दोस्त। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, बंधु है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्यों पैसे खराब करने किसी इंस्टीट्यूट में। पेशेंसली जो चीज 4 महीने में हो रही हो 6 महीने में कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन कंसिस्टेंसी रखना उस चीज के अंदर। सेल्फ स्टडी करके भी वैसा रिजल्ट आ सकता है जैसे रिजल्ट आते हैं स्टूडेंट्स के। और अभी भी मेरे पास, अगर आप मेरा लैपटॉप खोलोगे तो 15 से 16 ऑफर लेटर पड़े होते हैं जो हम पोस्ट ही नहीं करते। और उसके बाद काफी ऐसे ऑफर लेटर आते हैं, मैंने कहा इतने पोस्ट करेंगे तो लोगों को लगेगा पता नहीं क्या है, कैसे नहीं आ जाते हैं। तो काफी लोग ऐसे थोड़ा ऑफेंड हो रहे थे, तो वो चीज मैं खत्म करना चाहता था बाय दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो ये हो गई 2022 की बातें। 2022 तो आई वाज टेलिंग कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मुझे सबसे पहले यही लगा था कि यार ये चीजें बहुत मुश्किल तरीके से समझाई जा रही हैं। सबसे पहले तो इसको सॉर्टेड किया जाए, इसको थोड़ा फिल्टर किया जाए, उसको आसान तरीके में समझाया जाए और सरल भाषा में समझाया जाए। तो सरल भाषा के चक्कर में मैंने सिर्फ एक मैंडेट कर दिया कि मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा ही नहीं। हालांकि राइट नाउ मेरे पास एक बैच होता है जो कि फॉरेनर्स का होता है, सो ओनली लाइक वाइट पीपल आर देयर एंड दैट इज इंग्लिश बैच। तो दैट इज लाइक यू नो, तो वो थोड़ा स्पेशल बैच होता है। आई हैवंट डिड एनी बैच इन इंडिया फॉर लाइक बाय इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो, और अदर देन कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट्स में काफी ले चुका हूँ इन इंग्लिश, बट नॉट इन एज यूजुअल माय बैच इज नॉट देयर इन इंग्लिश। तो हिंदी में मैंने ये चीजें स्टार्ट करनी, और मैंने एक चीज समझी, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी और के पास पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि 30 दिन के अंदर आप डेवलपर नहीं बन सकते। ये मैंने समझ लिया था, कि मैं 30 दिन के अंदर इस बच्चे को डेवलपर नहीं बना सकता, भले इसको जितनी मर्जी कोडिंग आती है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप इस एक कोडिंग इकोसिस्टम से दूसरी कोडिंग इकोसिस्टम में जाते हो और उसका टोटली पोटेंशियल डिफरेंट है, मार्केट डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, तो इट टेक्स टाइम टू कंज्यूम दैट। उसके चक्कर में मैंने फिर आई टर्न्ड अराउंड सम थिंग्स। फिर मैंने कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट की जिसके अंदर मैं 30 दिन के बाद उनको गैप, फिर प्रैक्टिस, फिर गैप, फिर प्रोजेक्ट, फिर प्रैक्टिस। तो ऐसी चीजें मैंने स्टार्ट की जिससे क्या होता था, थोड़ा टाइम जरूर खींचा जाता था, लेकिन स्टूडेंट इज ऑन ट्रैक। और कभी बच्चा ऐसा नहीं हुआ कि प्लेसमेंट्स के बाद फंस गया हो। एजेंडा मेरा प्लेसमेंट तक नहीं होता, मेरा ये होता है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आई नीड टू कोप अप विद दैट गाय, कि उसको मेरी जरूरत ना पड़े बस प्लेसमेंट के बाद। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एजेंडा यही होता है किसी को भी ट्रेन करने का। सो दैट्स व्हाट आई लर्नड एंड आई डिड, आई इम्प्लीमेंटेड। और थोड़ा सा, बहुत सारा सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। सिलेबस तो अभी 2023 में बहुत ज़्यादा इंटायरली मैं सिलेबस चेंज कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, उस पर लगे हुए हैं। एंड मोर ओवर और भी अपॉर्चुनिटी आएंगी 2023, होपफुली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन मार्केट जितनी बंद होगी उतना CRM ज़्यादा बिकेगा, याद रखना मेरी बात। जितना CRM ज़्यादा बिकेगा उतना आपकी डिमांड होगी। आप चाहे, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, सबकी डिमांड होगी।
प्रॉब्लम क्या है, आप डिमांड पे खरे उतर रहे हो। अब कुछ बच्चे आते हैं सिर्फ एडमिन करना है, एडमिन करना है, एडमिन करना है। भाई साहब जॉब है मार्केट में। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आप उस चीज को नहीं देख रहे जिसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है। कुछ लोग कुछ अलग अलग चीजें कर रहे हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो अलग अलग के चक्कर में ना खिचड़ी पका रहे हैं बस, कि पहले एडमिन कर लिया, फिर मार्केटिंग कर लिया, फिर फलाना कर लिया, फिर डिमांड। जो चीज बनी हुई है, जो बेस बना हो, पहले उसको तो सीख लो। 2 साल बाद अपने आप को अपग्रेड कर लो, 3 साल बाद अपग्रेड करो। उस टाइम पे अपग्रेड नहीं करना, और उसके बाद फिर आपको ट्रेनर की जरूरत पड़ती है 2 साल बाद, 3 साल। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो ऑलरेडी सेल्स फोर्स में काम कर रहे हैं 2 साल से, 3 साल से। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ आपका माइंडसेट कैसा है। हर बंदे का ऐसे ही होता है, लालच बुरी बला है, लेकिन हम कहते ही हैं, लेकिन हम सब करते हैं, राइट। किसी बच्चे को पूछो प्लेसमेंट कहाँ चाहिए, तो क्या आंसर हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो प्लेस तो आंसर उनका ही होगा, सर एमएनसी में दे दो, बिग 4 में मिल जाए, फलाना ढिमकाना। और वो बच्चा मान लो एमएनसी में चला गया। एमएनसी क्या है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर बहुत डेवलपर होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है। आपको क्या गारंटी है 9 महीने, 10 महीने, साल के अंदर प्रोजेक्ट मिल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है सर। बेंच पे बैठे रहते हैं 6-7 महीने, 7 महीने बाद वो कहते हैं ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर, एक प्रोजेक्ट आया है, वो लेकिन सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, वो टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, वो फलाने का प्रोजेक्ट है, उसमें ट्रेन हो जाओ। जो आपने किया कराया होता है 7 महीने में भूल जाते हो। यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और 1.5, 2, 3 साल बीत जाते हैं, वहां पे खाते रहते हो, पीते रहते हो, एंजॉय करते हो, तब तक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तुम खत्म। वहीं जो लोग उस सिचुएशन को देखते हैं कि हाँ मेरी औकात जो है ना वो इतनी है, और अगर मैं इस औकात पे चढ़ूंगा 1-1.5 लाख के, सिर्फ फर्क पड़ा कितना होता है स्टार्टअप और एमएनसी के बीच में? 1-1.5 लाख, 2 लाख का होगा, 2.5 लाख का होगा। 2.5 लाख के पीछे वो अपने 20 लाख का नुकसान करवा लेते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अब जो स्टार्टअप वाला बंदा है वो 4.5 से स्टार्ट कर लेगा, 5 से स्टार्ट कर लेगा, 3 से भी स्टार्ट कर लेते हैं, 2.5 से भी कर लेते हैं बच्चे। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मैं तो कह रहा हूँ स्टार्टअप में जाओ। स्टार्टअप में जाने का फायदा दोस्त ये है कि 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट आपके डेस्क पे होंगे। 1 साल में आप वो कर लोगे जो एमएनसी के अंदर 3.5-4 साल वाला बंदा कर रहा है। और मैं फॉर श्योर होता हूं उनका मैनेजर को इतना नहीं आता होगा जितना आपको आ रहा होगा 1-1.5 साल बाद। तो उस कैपेबिलिटी तक वो रीच कर जाएगा, और जब वो चेंज करेगा देन he'll not go to the MNC, he'll go to the product based company, or he'll go to the big 4 companies, or he'll go to the ultra level companies like जो जैसे गूगल हो गया, वो हो गया। तो उसमें वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कई बार अगर आप गूगल में देखो आपको एमएनसी वाले बच्चे बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत, या फिर उन्होंने जीनियस हायर किए होते हैं, ठीक है। एक वो तो रिसर्च के अंदर होते हैं जो जीनियस वगैरह लोग होते हैं, लेकिन जो काम करने के लिए लोग हायर करते हैं दे माइट डिड द सेल्फ स्टडी जो करके वो जो पोटेंशियल दिखाते हैं अपना, और दे माइट बी फ्रॉम स्टार्टअप। 90% लोग वहां पे हो। अगर हम गूगल क्रैक किया होगा ना पता भी होगा, राइट। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि उस कंपनी, मिड लेवल कंपनी चूज करो, वो भी काइंड ऑफ एमएनसीज है। ओवर देयर आल्सो यू गेट 1 or 2 ऑफ, तो यू विल गेट टू लर्न मेनी थिंग्स, ठीक है। सो राइट नाउ आई शिफ्टेड टू कनाडा एंड आई एम मूविंग माय बिजनेस टुवर्ड्स कनाडा एंड यूएसए बिकॉज आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स हियर, तो मुझे डील करना पड़ेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन समथिंग विद इन कमिंग ईयर्स। You will find something, some good or bad, whatever it is, okay. So India, लेकिन इंडियन मार्केट को कैसे छोड़ सकता हूँ, दिल है मेरा वो, राइट। तो चाहे मैं जहाँ मर्जी चले जाऊँ, बट इंडियन इकोसिस्टम इज द इंडियन इकोसिस्टम, इसको नहीं छोड़ सकता। एंड इंडिया का तो चलता रहेगा जो भी है। सो that's it. So 2022 was great and we got recognized by the Indian government as a startup India. एंड वी क्रैक्ड ऑलमोस्ट 5 to 6 माइलस्टोन दिस ईयर, जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। और मैं एक चीज़ क्या कहता हूँ कि मैं कभी ड्रीम नहीं करता, मैं ड्रीम नहीं करता कभी भी चीज़ों को कि यार ये हो जाए मेरे साथ, ये हो जाए, ये इतने ऑफर लेटर आ जाए, इतने बच्चे प्लेस हो जाए, ये हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ बस। तो कभी ड्रीम मत करो, ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, कोशिश करो, ठीक है। और 4 साल से मैं सिर्फ कोशिश ही कर रहा हूँ, सिर्फ कोशिश ही हो रही है अभी। तो कोशिश में ही अगर जीवन निकले तो बढ़िया नहीं है, क्या जरूरत है। लेट्स हिट एंड ट्रायल। और बहुत सारी चीजें लाइक ये चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी, वीडियो से पहले मुझे अनाउंस करना चाहिए था, बट मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, यार ये क्रैक नहीं हुआ, ये सर मेरे से ये नहीं हो रहा, सर मेरे से वो नहीं हो रहा, सर मैं ये करके आया था पर मेरे से ये नहीं हो रहा। सो द प्रॉब्लम हियर इज बड़ी कि तुम्हारा एटीट्यूड है,
देखो, व्हाट इज फेलियर? व्हाट इज फेलियर? Failure led to disappointment, failure led to jealousy, failure led to this and that negativity, right? What is failure? तुमने कभी सोचा है अगर तुम फेल हो जाते हो तो क्या लॉस है? मान लो कोई बच्चा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत दबा के पढ़ा, कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया वो किसी कंपनी के अंदर जा नहीं सका, तो आपका आंसर पता क्या होगा? क्या फायदा हुआ सर उसके पढ़ने का? व्हाट इज फेलियर? मैं ये चीज का आंसर बता रहा हूं एंड में। तो भाई साहब, जो 4-5-6 महीने उसने स्ट्रगल करनी सीखी, क्या वो बच्चा कहां से आया? किस इकोसिस्टम से आया है? अब तक उसने कोई स्ट्रगल की थी, अब तक उसने कुछ अचीव किया था, लेकिन 4-5 महीने जो उसने हसल करनी सीखी, जो उसने लर्न किया कि इतने इंटरव्यू के अंदर वो रिजेक्ट होके उस रिजेक्शन को टैकल करना सीखा, वो एक्सपीरियंस कौन काउंट करेगा? तो फेलियर कभी फेलियर नहीं होता, फेलियर लर्निंग होती है, जो तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या लर्न कर गए। मैं ये सोच, जब मेरी तनख्वाह बहुत कम थी, मेरी 10-12 हज़ार से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, मैं जॉब करता था, तो मैं ये सोचता था यार मैं कर क्या रहा हूं? मैं इतना काम करता हूं, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे की सिटिंग है, मेरी जिंदगी क्यों नहीं आगे बढ़ रही? मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं क्या कमा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, 1 रुपया तक नहीं बचता था। द प्रॉब्लम इज कि मैं वहां पे फिर आई रिकॉग्नाइज्ड, आई लर्नड, यू नो, आई लव टू लिसन वेरी गुड पीपल, यू नो। आज यूट्यूब है हमारे पास, बहुत अच्छा सोर्स है यार, तो इससे मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, बहुत सारे लोगों से। तो एक बंदे ने कहा कि तू ये सोच कि सुबह से लेके तू शाम तक करता क्या है? मैंने कहा मैं प्रेशर झेलता हूँ, मैं गालियां खाता हूँ मैनेजर से, मैं सीनियर से भी गाली खा लेता हूँ, इनफैक्ट ये भी होता है वो पीछे थप्पड़ लगा रहे, ये क्या किया तूने, ऐसे करना चाहिए था। मैंने कहा अब मुझे एरर सॉल्व करने आ गए हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम, इट टुक टाइम। अब मैं कोडिंग भी सीख गया हूं। कितने महीने में सीखा? 1.5, 2, 3, 4 महीने में सीख गया था। तो इतने कम में, तो मैंने कहा, तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर उस लेवल के बंदे से कंपैरिजन करूं, तो फिर मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? एक मेरा दोस्त है अक्षय, वो एमएनसी में था, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर, बहुत मेरे से 1.5-2 लाख 3-4 लाख ज्यादा पैकेज मिला था उसको। He might be listening this, you know. तो मुझे यार, मैंने कहा यार उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा, वो पहले से कोडिंग जानता था, मैं नया नया सीखा था, तो मैंने कहा यार इसको अगर ये मिल सकता, मुझे क्यों नहीं मिल रहा यार? मैं तो अच्छी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, सेल्सफोर्स इज द बेस्ट इन इंडस्ट्री, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? प्रॉब्लम क्या थी? और मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा अक्षय क्या चल रहा है लाइफ में? तो उसने मुझे कहा कि यार रोहित, बस एंजॉय कर रहे हैं, 8-9 महीने से बेंच पे हैं। वो भी फ्रेशर हायर हुआ था कंपनी के अंदर, मैं भी फ्रेशर हायर हुआ था छोटी कंपनी के अंदर। मेरी कंपनी के अंदर 10-12 बंदे थे, उसकी एमएनसी थी। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा यार अक्षय ये प्रॉब्लम है मुझे। कहता मैं तो आप स्टार्टअप ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, पागल है क्या, जिंदगी खराब हो जाएगी? कहता नहीं, कहता साला काम ही नहीं किया हमने, 7-8 महीने हो गए रोहित, काम ही नहीं किया। मैंने कहा यार मेरे तो काम कर करके दिमाग खराब हो गया मेरा। तो कहता तू बड़ी है लर्निंग। मैं कहा यार मैं सोच रहा हूँ ये मेरा फेलियर है। कहता तुझे आगे पता लगेगा, आगे इज व्हाट आई एम। और वो चीज ऐसी मेरी जिंदगी में आई, मतलब आई थैंक्स टू कंपनीज, यू नो। मैं 2-3 कंपनियों के अंदर, जिसके अंदर मैंने काम किया, छोटी छोटी कंपनियों के अंदर, जिन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला, जिन्होंने मेरे स्ट्रेस डाला, गालियां दी टू पीपल, कि ऐसे लोग गलत एटीट्यूड, कई टाइम उनका बहुत गलत एटीट्यूड होता था, बट फिर भी आई थैंक टू लाइक जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ या गलत हुआ व्हाटएवर, कि वो डेस्टिनी ऐसी बनी कि कुछ महीनों के अंदर मैं इस तरह ट्रेन हो गया कि पूरे जिंदगी के लिए अगर मुझे हसल एंड टसल करनी पड़ रही है, आज मैं यूएस के अंदर हूँ, कनाडा के अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे आज हसल एंड टसल करनी पड़ रही है तो मुझे वो हसल एंड टसल कुछ लग ही नहीं रही है, क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ कि मुझे मैं लाइक हियर ऑल्सो आई हैव अ सिटिंग ऑफ ऑलमोस्ट 16 आवर्स, इससे ज्यादा मेरी सिटिंग है। तो इतनी सिटिंग मैं मेंटेन कैसे कर पाया लाइफ के अंदर? बिकॉज आई फिगर्ड आउट कि वो दिन जो थे, आज मुझे रियलाइज हो रहा है 4 साल बाद कि वो जो दिन थे उन्होंने मुझे मेहनत करनी सिखाई। तो ये आप डिसअपॉइंट मत हुआ करो कि मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, 6 महीने हो गए, 7 महीने बाद हुई, 8 महीने बाद हुई। यार हो जाएगी यार, इतना स्ट्रेस क्या है? 2023 आपका है। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस, इट वाज अ ग्रेट वीडियो। आई वांट टू विश यू, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर। अपने पेरेंट्स के हाथ पैर याद जरूर लगाना, लाइक, ठीक है?
और अपने फादर को हक करना, अगर आप दूर रहते हो उनसे बात करके सुबह, क्योंकि इट्स अ 2nd of Jan, दिस वीडियो माई टेक टाइम टू एडिट एंड ऑल दिस थिंग्स, बट मैं ये कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से लक स्टार्ट होता है। लोग कहते हैं ना लकी है, कोई इंसान लकी तभी हो सकता है अगर उसके पेरेंट्स खुश हैं। तो मेरी ये बात याद रखना, और थैंक यू टू एवरीबडी हु लव मी, और जो जो प्यार करता है वो कमेंट ज़रूर करे हैप्पी न्यू ईयर का, एंड श्योरली आई रिस्पॉन्ड यू। एंड दिस वीडियो इज आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट वीडियो। लाइफ में और माइलस्टोन क्रैक करना है, आई डोंट ड्रीम ऑफ, कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे और बड़े बड़े माइलस्टोन लेके आए। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ना अनाउंस करी हुई है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, प्लान चेंज होते रहते हैं टाइम के लिए, एंड आई वांट टू गो विद द फ्लो। ठीक है, मुझे इंटरनेशनल जाना था, फाइनली आई एम, और मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, दे सपोर्टेड मी अ लॉट, एंड हियर ऑल्सो आई एम गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, एंड थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू टू इंडियन गवर्नमेंट एज वेल, थैंक यू टू पीपल, थैंक यू टू एवरीवन फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। एंड बहुत सारे लोग अब मुझे, मैंने पब्लिक में, मैं रिसेंटली गया था कनाडा के अंदर, बहुत सारे लोग, लाइक 2-3 लोगों ने मुझे पहचान लिया मेरा हुआ है। तो इंडिया में तो चलो ये अक्सर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे होना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।